इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है चांदनी रावत। दोस्तों, जैसा कि हम सभी के साथ ऐसा हो गया है कि जब से ये कोरोना पैंडेमिक आया है और लॉकडाउन हुआ है, हम तब से हमने अपनी तैयारी बिल्कुल छोड़ दी है। ये सोच के कि गवर्नमेंट जॉब्स अब आएँगी या नहीं आएँगी, वैकेंसीज़ ज़्यादा होंगी, नहीं होंगी, या फिर चलो नोटिफिकेशन आने दो तब पढ़ाई करेंगे। तो ये जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो इंतज़ार करने की वजह से आपको उतना ही मिलेगा जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देंगे। यानी हम में से कितने ही कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी लगे हुए हैं, जो अभी भी पूरी कोशिश, पूरा मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, बिल्कुल वेट मत करिए किसी नोटिफिकेशन का, किसी गवर्नमेंट जॉब का। इस साल नहीं आएँगी, अगले साल तो आएगी, इस महीने नहीं, अगले महीने, अगले नहीं तो उसके अगले, कभी तो आएँगी। तो आप बस यही सोच के कोशिश करते रहिए कि कभी ना कभी जॉब्स आएँगे और आपको उसका टेस्ट देना ही है। तो बिल्कुल वेट मत करिए, बिल्कुल ये एक एक्सक्यूज़ है बिल्कुल बहुत बड़ा कि नहीं पढ़ने का एक्सक्यूज़ है। तो आप बिल्कुल अपने आप को एक्सक्यूज़ मत दीजिए और अब्दुल कलाम जी के इस अच्छे थॉट के साथ चलिए शुरू करते हैं 24 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स करने से पहले हम प्रीवियस डे के करंट अफेयर्स कुछ रिवाइज कर लें, तो उससे हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो हम कल के कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया एंड साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन रिवाइव्ड इनिशिएटिव फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वाया वर्चुअल मीट। इंडिया Maldives inked agreement for establishment of emergency medical services in Mali. India ranked among 10 worst countries for working people. Arnab Chaudhary to receive Toons Media Award. Ola rolls out enterprise solution Ola Corporate to global customers. Indian Army gets Bharat drones for accurate surveillance. Indian Air Force Commanders Conference begins in Delhi. Oxford COVID-19 vaccines human trial shows positive result. Rare yellow turtle discovered in Orissa, India. LIC UBI announced corporate agency pact. FamPay launched India's first numberless card, FamCard. India's GDP to contract by 6.1% in fiscal year 21, Nomura. India's HIL supplied 20.60 MT of DDT, 75% WP to South Africa for malaria control. Environmental activist Greta Thunberg won first edition Gulbenkian Prize for Humanity. Professor R. Narayan Samy of IIM Bangalore appointed as chairperson of the Technical Advisory Committee of NFRA. Prakash Chandra Kantpal appointed as MD and CEO of SBI General Insurance. Sumit Dev appointed as CMD of NMDC. Government extend NCLT acting president BSV Prakash Kumar's tenure for 1 month. Roshni Nadar becomes first woman to chair listed Indian IT firm after taking over as HCL Tech chairperson. Rahul Bajaj to step down as Bajaj Finance chairman, Sanjeev Bajaj to succeed. DRDO test fires made in India anti-tank guided Nag missile named Dhruvastra. Russia for the first time successfully conducted flight tests of the MGTD-20 gas turbine engine made by 3D printing. Andhra Pradesh signs MOU with Amul to help women self-help groups and boost milk cooperatives. Haryana CM launched e-Sachivalaya portal for online appointments with CM, Deputy CM and various heads of department. Punjab government signs MOU with IIT Ropar for skill development. Chhattisgarh rolls out Godhan Nyay Yojana to boost rural economy. Kulmeet Bawa appointed as President and MD of SAP India.
Tamil Nadu Labor Department launches web portal for unorganized sector. तो चलिए दोस्तों, आज की यानी कि 24 जुलाई की करंट अफेयर पे नजर डालते हैं। सबसे पहला है, पीएम नरेंद्र मोदी लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की नींव रख दी है, जो कि जल जीवन मिशन के अंडर था। इसके अंडर जो भी प्लान किया गया फ्रेश वाटर हाउस होल्ड टैप कनेक्शन का, कि पूरे जितने भी इलाके में हाउस होल्ड होंगे सब 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 के हाउस में टैप कनेक्शन होगा और उसमें फ्रेश वाटर आएगा। ये जो काम चल रहा है ये चलेगा ग्रेटर इम्फाल, जिसका कि प्लानिंग एरिया होगा 25 टाउन्स एंड 16 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मणिपुर। मणिपुर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ की सीएम एन बीरेन सिंह एंड यहाँ की गवर्नर है नजमा अकबर अली हेप्तुल्ला। प्रधानमंत्री मोदी addressed Virtual India Idea Summit 2020, India US negotiating UAV co-development program। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एड्रेस किया 2 दिन चलने वाली वर्चुअल इंडिया आइडिया समिट 2020, जो कि होस्ट कराएगी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा, जिसकी की थीम थी बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। 2020 वाला जो साल है ये 45th एनिवर्सरी होगी यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की। इस समिट में यूएस और इंडिया नेगोशिएट कर रहे हैं अ को डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल। यूएई स्टैंड करता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ऐसा व्हीकल जो कि अनमैन्ड होगा, मतलब जिसको कि सिर्फ मशीन ही ऑपरेट कर रही होगी, उसमें वो लोग नेगोशिएट कर रहे हैं उस प्रोग्राम में बिटवीन यूएस एयरफोर्स रिसर्च लैब, इंडियन एयरफोर्स, India's Defense Research and Development Organization and an Indian startup company. Kakrapar Atomic Power Projects Unit 3 in Gujarat, India's first 700 megawatt electric unit to achieve criticality. The Nuclear Power Corporation of India Limited ने अनाउंस किया कि यूनिट 3 ऑफ ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का पहला 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक एंड इंडिजिनियसली डेवलप्ड प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर इन सूरत गुजरात है, अचीव्ड इट्स फर्स्ट क्रिटिकलिटी इनिशिएशन ऑफ कंट्रोल एंड सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। उसने अपना पहला क्रिटिकलिटी, पहला टेस्ट उसने अचीव कर लिया है, जो कि था इनिशिएशन ऑफ कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो था जिसका कि इनिशिएटिव लेना था, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन एंड एमडी है सतीश कुमार शर्मा। इसका हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। India to have 60% renewable energy by 2030, R.K. Singh at webinar on energy transition। R.K. सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने एक वेबिनार जो कि एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर था, उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि 2030 तक इंडिया 60% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन जाएगा। MNRE की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं राजकुमार सिंह, R.K. सिंह, एंड TERI द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर अजय माथुर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जितेंद्र सिंह लॉन्च रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 एंड वेब पोर्टल वर्चुअली। जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, उन्होंने लॉन्च किया एक रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम जो कि किसके लिए थी, PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 एंड द वेब पोर्टल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उन्होंने जो स्कीम थी PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 उसको रीस्ट्रक्चर किया और एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया।
इस रीस्ट्रक्चरिंग का पर्पस था टू रिकॉग्नाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट collectors with regard to outcome indicator, economic development, people's participation and redresser of public grievance. India Maldives signed contract for development of Gedosu mass plant in Maldives, Maradhu and Hulhudo. इंडिया और मालदीव्स ने इंक किया एक एग्रीमेंट जिसमें कि सेटअप होगा गेदोसू मास प्लांट दो आइलैंड में जो कि अड्डू सिटी ऑफ मालदीव्स में है, जिनका की नाम है मराधू एंड हुलहुदू. This agreement is the first in the series of Indian grant assistance for implementation of high impact community development project through local bodies. ये इस सीरीज का पहला एग्रीमेंट होगा मालदीव्स में जिसका की कॉस्ट होगा $5.5 मिलियन. मालदीव की कैपिटल है माले और इसकी करेंसी है रुपया. तुर्कमेनिस्तान became 25th country with observer status in World Trade Organization. तुर्कमेनिस्तान 25th कंट्री बन चुका है जिसको कि ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, एनेबलिंग द नेशन, जो कि नेशन को अलाउ कर देगा टू स्टैब्लिश परमानेंट रेसिडेंस एट WTO हेडक्वार्टर इन जेनेवा. वो अपना परमानेंट रेसिडेंस बना सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, एंड मॉनिटर इट्स प्रोसीडिंग्स, और अपनी जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं. Turkmenistan also became the last formal Soviet republic to establish formal ties with the trade body. तुर्कमेनिस्तान आखिरी फॉर्मल सोवियत रिपब्लिक है जो कि फॉर्मल टाइज एस्टेब्लिश कर रहा है किसी भी ट्रेड बॉडी के साथ. This observer status was granted during the fifth virtual session of WTO General Council, which was held from WTO headquarters and attended by representatives of its member. ये जो ऑब्जर्वर स्टेटस है ये ग्रांट किया गया फिफ्थ वर्चुअल सेशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल जो कि कहाँ पर हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर यानी कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्टो कार्वल्हो डे अजेवेडो, और मेंबर्स हैं इसमें 164 कंट्रीज और 25 ऑब्जर्वर नेशंस. निकारागुआ becomes the 87th country to sign the International Solar Alliance Framework Agreement. निकारागुआ 87th कंट्री बन चुकी है जिसने की साइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट. An initiative to promote sustainable energy led by India. ये एक इनिशिएटिव है, ये एक कदम रखा गया है सरकार ने ताकि वो सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट कर सके. इस चीज को लीड कौन कर रहा है, इंडिया. ISA की बात करें तो डायरेक्टर जनरल है उपेंद्र त्रिपाठी, हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में. और रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डैनियल ओर्टेगा, यहाँ की कैपिटल है मानागुआ और करेंसी है कोर्डोबा ओरो. Ravi Shankar Prasad represented India in the G20 or Group 20 Digital Economy Ministers virtual meeting hosted by Saudi Arabia. Union Minister of Electronic and Information Technology के जो हैं रवि शंकर प्रसाद जी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को वर्चुअल मीटिंग ऑफ ग्रुप 20 डिजिटल इकोनॉमिक मिनिस्टर की मीटिंग में जो कि हुई अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया. G20 की बात करें तो इसके मेंबर्स है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन. Airtel Payments Bank partnered with NSDC to skill rural youth for financial services sector job. एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड ने पार्टनर किया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ ताकि वो ट्रेन कर सकें और जो यूथ हैं, जो रूरल एरिया में, गांव के एरिया में जो भी जवान लोग हैं, जो भी यंग पीपल हैं, जो भी यूथ हैं, उनको वो ट्रेन कर सकें और उनको स्किल बना सकें ताकि वो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर जॉब्स पा सकें.
This will enable them to find employment opportunities and become entrepreneurs in the financial service sector. ये उन युवाओं को एबल कर देगा कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकें, रोजगार ढूंढ सकें और बहुत और एंटरप्रेन्योर बन सके फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में. The knowledge and training imparted to youth is to render financial and banking services more accessible to rural and semi-urban India. ये जो ट्रेनिंग और नॉलेज जो यूथ को दी जाएगी इस अबाउट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज वो मोर एक्सेसिबल टू रूरल एंड सेमी अर्बन इंडिया. जो रूरल है और सेमी अर्बन इंडिया है वहाँ पर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा एक्सेसिबल हो सकती है इस इनिशिएटिव से, इस नॉलेज से, इस ट्रेनिंग से. एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में. यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं अनुब्रता बिस्वा. एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में और यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार. Bank of Baroda launched InstaClick Saving Account, 100% paperless digital self-assisted online saving account. बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जो कि 100% पेपरलेस, बिल्कुल कोई पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट जो कि डिजिटली असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट होगा, अकाउंट खोलने में हेल्प करेगा. It can be activated in real time, that is, a customer can transact using the Baroda M Connect Plus application with the MPIN received on the mobile number. It also offers an option to subscribe to a wide range of digital channel like mobile banking, internet banking, UPI and debit card. बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में. एमडी एंड सीईओ है संजीव चड्डा. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है हसमुख आधिया. India's GDP to contract by 6% in fiscal year 21 DBS. डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जीडीपी -6% हो सकती है फिस्कल ईयर 21 के लिए. RIL becomes the first Indian company to reach market cap of rupees 13 lakh crore, becomes 48th largest country in market cap globally. RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पहली इंडियन कंपनी बन चुकी है जो कि मार्केट कैपिटलिज्म ऑफ 13 लाख करोड़ रीच कर पाई है. इट बिकम्स द वर्ल्ड 48th लार्जेस्ट कंपनी बाय एमकैप अहेड ऑफ एबोट लैब्स, ओरेकल, शिवरॉन एंड यूनिलीवर. इन सारी कंपनी से आगे को पीछे छोड़ते हुए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 48 नंबर पे आ चुकी है ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में. ग्लोबली सऊदी अरामको इज द कंपनी विद द हाईएस्ट मार्केट कैप ऑफ $1.7 ट्रिलियन. ग्लोबली यानी विश्व में सऊदी अरामको ऐसी कंपनी है जिसका कि मार्केट कैपिटलिज्म है 1.7 ट्रिलियन डॉलर. उसके बाद एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और अल्फाबेट भी हैं. रिलायंस इज द 10th हाईएस्ट एम कैप कंपनी इन एशिया. एशिया की बात करें तो रिलायंस 10वें नंबर पे है. चाइनाज अलीबाबा ग्रुप इज रैंक्ड 7th ग्लोबली. RIL की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ के सीईओ हैं मुकेश अंबानी. Mukesh Ambani, fifth richest man in the world with net worth of $75 billion, Forbes real-time billionaires list. Forbes real-time billionaires list में मुकेश अंबानी जी 5वें richest man in the world घोषित कर दिए गए हैं जिनकी नेट वर्थ $75 बिलियन है. इस लिस्ट में सबसे पहले हैं जेफ बेजोस, दूसरे हैं बिल गेट्स और तीसरे हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड. The DG RPF Shri Arun Kumar nominated as the Vice Chairman of UIC Security Platform. डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स श्री अरुण कुमार जी को नॉमिनेट कर दिया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ पेरिस बेस्ड यूनियन UIC फ्रॉम जुलाई 2020 टू जुलाई 2022. UIC का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में. इसके अंडर मेंबरशिप कंट्रीज हैं 194. चेयरमैन है मिस्टर गियान लुइगी
कास्टेली। प्रेसिडेंट एंड CEO हैं मिस्टर अली इशान उगियान। डायरेक्टर जनरल है फ्रांकोइस डवेने। RPF की बात करें तो यहाँ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं मिस्टर पीयूष गोयल, जो कि यूनियन मिनिस्टर है रेलवेज के। CCI approved acquisition of Krishnapatnam Port Company Limited by Adani Port and SEZ Limited। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी जो लिमिटेड, जो कि किसके द्वारा है, अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड के द्वारा। तो उन्होंने एक्विजिशन करने के लिए परमिशन अप्रूवल दे चुका है। द प्रपोज्ड कॉम्बिनेशन envisaged acquisition of equity shareholding and full management control of KPCL यानी कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड बाय अडानी पोर्ट एंड SEZ कंपनी। इस प्रपोजल के अंदर जो एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग, जो शेयर होल्डिंग का एक्विजिशन है वो भी दिया जाए और फुल मैनेजमेंट कंट्रोल दिया गया है कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का। किसको? अडानी पोर्ट एंड SEZ लिमिटेड को। कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में। ग्रुप चेयरमैन है C विश्वेश्वरा राव, MD है C शशिधर। और अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड का हेड ऑफिस है अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ के CEO हैं करण अदानी। चाइना लॉन्चेस Tianwen-1, चाइनाज फर्स्ट रोवर मिशन टू मार्स। चाइना का पहला रोवर मिशन मार्स में मंगल ग्रह के लिए चाइना ने लॉन्च किया Tianwen-1 on 23rd July 2020। The Tianwen-1, China's first fully homegrown Mars mission, was launched in a Long March 5 rocket from the Wenchang Satellite Launch Center in Hainan Island। हाइनाम आइलैंड में मार्च 5 रॉकेट के द्वारा, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया फर्स्ट रोवर मिशन टू मार्स। Tianwen-1 is carrying the duo of an orbiter and a lander or rover. This combination of craft was never launched towards Mars। जो Tianwen-1 होगा, ये जो डुओ लेके कैरी कर रहा है, एक होगा ऑर्बिटर यानी जो उसके ऑर्बिट के चक्कर लगाएगा, और दूसरा होगा लैंडर या रोवर जो लैंड करेगा मार्स की सतह पे। चाइना की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, कैपिटल है बेजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। ISL becomes first league in South Asia and 7th in Asia to join the World League Forum। The Hero Indian Super League ने ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड लीग्स फोरम को, और ये ज्वाइन करने वाला सेवंथ नंबर पे आ गया है इन एशिया टू ज्वाइन द वर्ल्ड लीग फोरम। वर्ल्ड लीग फोरम की बात करें तो इसके चेयरमैन है एनरिके बोनिला, जनरल सेक्रेटरी है जेरोम परलेम्यूटर, और मेंबर है 42 मेंबर्स। The book titled The Pandemic Century by British medical historian Mark Honigsbaum। एक बुक लॉन्च करी गई है, एक बुक लिखी गई है द ब्रिटिश मेडिकल हिस्टोरियन मार्क हॉनिग्सबॉम के द्वारा, जिसका नाम है द पैंडेमिक सेंचुरी, द हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल कंटेजियन फ्रॉम द स्पेनिश फ्लू टू कोविड-19। इस बुक में उन्होंने 1918 में आया गया सबसे पहला स्पेनिश फ्लू से लेके 2019 का कोरोना वायरस तक उन्होंने सारा कुछ उसमें बताया है कि कैसे हर 10 साल में आउटब्रेक्स होते हैं किसी न किसी वायरस के या फ्लू के, और ये पूरा 100 साल यानी कि एक सेंचुरी इस पेंडेमिक की कैसी रही उसमें उन्होंने सब कुछ बताया है। द बुक हैज़ वॉन, इस बुक को अवार्ड मिल चुका है फाइनेंशियल टाइम्स बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का। GEDCOL and NHPC signed MOU to develop floating solar power project in Odisha। द ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ। क्या चीज़ डेवलप करने के लिए? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए इन ओडिशा, जिसकी की कैपेसिटी होगी 500 मेगावाट्स की।
The first phase work of the project starts by March 2022. मार्च 2022 से पहला फेज ऑफ वर्क शुरू किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसके मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह जी, जिनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है आरा, बिहार। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में, और चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर अभय कुमार सिंह। CIPET gets NABL accreditation for testing certification of PPE kits. Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology भुवनेश्वर, ओडिशा, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, हैज़ रिसीव्ड, इसको मिला गया है नेशनल एक्रेडिटेशन, यानी कि नेशनली इनको नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। जो CIPET है उसको NABL एक्रीडिटेशन मिला गया है। एक्रीडिटेशन मतलब होता है कि उनको प्रेस किया गया है फॉर किस चीज के लिए? टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ऑफ PPE किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स के टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए उनको एक्रीडिटेशन किया गया है, उनको प्रेस किया गया है। फर्स्ट एवर कंटेनर शिप MV सज्योति फ्रॉम कोलकाता वाया चट्टोग्राम पोर्ट रीचेस अगरतला। कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर शिपिंग मनसुख मंडाविया जी ने, उन्होंने हरी झंडी दिखा दी थी कंटेनर शिप को, पहला कंटेनर शिप को MV ज्योति, कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता से अगरतला तक, और कहाँ से होते हुए? चट्टोग्राम पोर्ट से होते हुए। चट्टोग्राम पोर्ट बांग्लादेश में है, ये भी हम उस टाइम डिस्कस कर चुके थे। ऑबिचुअरीज की बात करें तो दोस्तों वही रिवीजन में चल रहा है। MP गवर्नर लालजी टंडन, ओडिया एक्टर विजय मोहांती, फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेटर बैरी जामन, स्पेनिश नॉवेलिस्ट जुआन मासे, क्रिएटर ऑफ 1980 ओलंपिक मैस्कट विक्टोर सिजिकोव। इम्पोर्टेंट डेज की बात करें तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 2020 मनाया गया 23 जुलाई को। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया 23 जुलाई को। उसके अलावा रिवीजन की बात करें तो डे ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस होता है 17 जुलाई को। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे होता है 18 जुलाई को। फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया 20 जुलाई को, और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे होता है 23 जुलाई को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी नॉलेज पसंद आती है, तो ज़रूर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, इसको अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल CR अकेडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं ये PPT डालती रहती हूँ। वेल, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।